وشرطها ان تكون نکرتن وصاحبها معرفتن غالبا. درمیان میں وارسلها العراق کا جو جملہ ہے اور مررت به وحده ونحوه متأول، یہ جملہ چھوڑ دے. مکمل عبارت یہاں تک ہے کہ وشرطها ان تكون نکرتن وصاحبها معرفتن غالبا فان كان صاحبها نکرتن وجب تقدیمها. پورا قاعدہ یہ ہے. اچھا، وشرطها ای وشرط الحال، حال کی شرط یہ ہے ان تکون نکرتن کہ وہ نکرہ ہوگی، وصاحبها وصاحب ای وصاحب الحال اور حال کا صاحب کیا ہے؟ ذوالحال. اور ذوالحال جو ہے مغرفتن غالباً اکثر غالب مقدار میں کیا ہوگی؟ مغرفہ ہوگی. غالباً لگایا. غالباً کی وجہ سے یہ دوسری عبارت کی ضرورت پیش آئی کہ کبھی کبھی نکرہ فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا فَإِن كَانَ صَاحِبُ الْحَالِ، اگر ذوالحال کا جو ساتھی ہے وہ نکرہ ہو، وجب تقدیمها، تو اس کی تقدیم واجب ہے. وشرطها ان تكون نکرتن، حال کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. حال کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. اور ذوالحال کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو. وشرطها ان تكون نکرتن، حال کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. حال نکرہ ہوگا. وصاحبها معرفتن، اور ذوالحال کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. ذوالحال معرفہ کیوں ہوگا؟ تو پہلے آپ یہ سمجھیں. حال نکرہ ہوگا. محشی نے اس کی 3 جوابیں دی ہے. کتنی جوابیں دی ہے؟ 3 جوابیں دی ہے. ایک جواب یہ دی ہے لئلا تلتبس بالصفت فی النصب، کہ حالت نصب میں صفت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے. اس لیے نکرہ ہوگی حال کی حالت ہے نصبی میں صفت کے ساتھ التباس ہو. اچھا، حالت نصبی میں صفت کے ساتھ التباس کس طرح لازم آتی ہے؟ دیکھیں، مثلا آپ یہ کہے کہ رأیت الرجل العالم، رأیت العالم حالت نصبی ہے. رأیت فعل، تو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلا مسند الیہ اس کا فاعل. ابھی الرجل اور العالم، الرجل اگر ہم یہ کہے کہ یہ ذوالحال ہے، کیا ہے؟ ذوالحال ہے. اور العالم کے ساتھ ہم یہ کہے کہ یہ حال ہے، یہ حال ہے. تو اگر ہم العالمہ کے ساتھ یعنی یہ جو حال ہے وہ نکرہ ہم نہ مانیں، نکرہ ہم نہ مانیں، تو ایک دوسری ترکیب کی بھی التباس لازم آئے گی کہ الرجل کو آپ موصوف بنائیں. کیا بنائیں؟ اور العالمہ کو آپ صفت بنائیں. الرجل کو کیا بنائیں؟ العالمہ کو کیا بنائیں؟ یہ موصوف صفت بھی بن سکتے ہیں. اور اگر آپ ایسا کریں کہ حال کے لیے نکرہ ہونے کی شرط لگائے تو پھر عبارت اس طرح بنے گی رأیت الرجل عالما. تو اب الرجل جو ہے یہ ذوالحال بنے گا اور عالما جو ہے یہ حال بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ اب موصوف صفت کی ترکیب جائز نہیں ہے. اس لیے اگر آپ الرجل کو موصوف پڑھے، العالمان کو صفت پڑھے تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے. اس لیے کہ موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے اور عالمان جو ہے صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے. اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ حال نکرہ ہوگی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ حالت نصب میں صفت کے ساتھ التباس لازم. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی بیان کی ہے. 5 نمبر حاشیہ ہے. دوسری یہ بیان کی ہے والغرض يحصل بها في التعریف. دوسری بات یہ ہے کہ اصل اسم میں نکرہ ہے. معرفہ اور نکرہ میں اصل میں کیا ہے؟ نکرہ ہے. کیا ہے؟ تنکیر ہے کہ اسم نکرہ. اور جب تک نکرات سے کم چل سکتی ہے وہاں تک معرفہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. معرفہ کی طرف نہیں جائیں گے. تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ ولأنها لا تحتاج بحسب معناه الى التعريف لأن المقصود من الحال تقييد الحدث المنسوب الى الفاعل او المفعول. کہ اصل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حال جو ہے یہ قید ہوتا ہے کس چیز کی؟ ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ قید جو ہے یہ اس اور یہاں پر تقیید الحدث المنسوب الى الفاعل والمفعول والنکرۃ کافیۃ فیہ. یہ حال کیا بنتا ہے ذوالحال کے لیے؟ قید. کیا بنتا ہے؟ قید بنتا ہے. اور محاشی کہتی ہے والنکرۃ کافیۃ فیہ کہ اس قید میں نکرہ کیا ہے؟ کافی ہے. نکرہ کیا ہے؟ تو ذوالحال کی طرف جانے کی ضرورت، معرفہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 وجوہات ہم نے بیان کی کہ نکرہ کیا ہوگا؟ حال ہوگا. ایک بات ہم نے یہ بیان کی کہ عالمان یہ جو نکرہ ہے حال نکرہ ہوگا اس وجہ سے کہ حالت نصب میں التباس لازم نہ آئے. دوسری وجہ ہم نے یہ بیان کی کہ اصل اسماء میں تنکیر ہے. تیسری وجہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے اور قید کے لیے نکرہ بھی کافی ہے. اچھا، وصاحبها معرفتان غالبا. وصاحبها اور ذوالحال جو ہے وہ اکثر طور پر معرفہ ہوگی. وہ اکثر طور پر کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. معرفہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ذوالحال جو ہے وہ مبتدا کی طرف ہوتا ہے. کس کی طرف ہوتا ہے؟ محکوم علیہ ہوتا ہے. اور وہ اکثر اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو ذوالحال بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. وارسلها العراق ومررت به وحده. وارسلها العراق پر 8 نمبر حاشیہ لگا ہوا ہے.
मुहाशी कह रहे हैं हाजा, ये एक जवाब सवाल मुकद्दर का जवाब है। मुहाशी कह रहे हैं कि एक सवाल है वह अन युकाल अंतुम कुल्तुम शर्तुल हाल अन यकूना नकिरतन। मुहाशी कह रहा है कि आपने अभी बताया, इधर देखें, आपने अभी बताया कि हाल के लिए शर्त यह है कि वो नकिरा होगी। हाल के लिए शर्त क्या है कि वो नकिरा होगी। हालांकि वो अरसलहा अल इराका जो है, इसमें अल इराका हाल वाक़या हुआ है अरसलहा से। अरसलहा अल इराका, ये हाल वाक़या हुआ है अरसलहा के हाल, और अरसलहा ये मारिफा है या नकिरा है? ये मारिफा है। इसी तरह दूसरी मिसाल क्या है? मररतु बिही वहदहु, यहाँ पर वहदहु जो है ये हाल वाक़या हुआ है बिही ज़मीर से, और ये भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी की वजह से मारिफा है। और अब कह रहे हैं कि हाल जो होता है वो क्या होगी? नकिरा होगी। तो साहिब काफ़िया ने इस दोनों सवालों का एक लफ्ज़ के साथ जवाब दिया है मुतअव्वलुन। क्या? कि इसमें तवील किया गया, कि इसमें कि यहाँ पर अल इराका ये मुअतरिकुन के माना में, किसके माना में है? और ये क्या है? मुअतरिकन क्या है? नकिरा है। और वहदहु जो है ये मुनफरिदन के माना में, ये किसके माना में है? मुनफरिदन के माना में है। और ये भी क्या है? नकिरा है। और बाद में ये भी कहा है कि ये अल इराका और वहदहु ये हाल नहीं है, बल्कि ये मफऊल मुतलक है पहले महज़ूफ़ के लिए। पहले ये अल इराका तारिकुल इराका, तारिको वो वहदहु मुनफरिदुन या यनफरिदु वहदहु के लिए है। फ़इन कान साहिबुहा नकिरतन वजब तक़दीमुहा वला यतक़द्दमु अला आमिल मानविय्य बिखिलाफ ज़र्फ़ वला अल मजरूर अल असह। फ़इन कान साहिबुहा नकिरतन, अगर हमने कहा कि ज़ुलहाल अक्सर क्या होगा? लेकिन अगर ज़ुलहाल नकिरा हुआ वजब तक़दीमुहा, तो हाल को ज़ुलहाल पर मुक़द्दम करना वाजिब है। अगर ज़ुलहाल नकिरा हुआ तो हाल को किस पर मुक़द्दम करेंगे? ज़ुलहाल पर। जैसे देखें रअयतु रजुलन राकिबन, रअयतु, यहाँ पर रअयतु जो है फ़ेल है, तो ज़मीर फ़ेल है, रजुलन क्या बनता है? ये ज़ुलहाल है। रजुलन क्या है? और राकिबन क्या बनता है? ये हाल बनता है। रजुलन ज़ुलहाल है, हमने कहा था कि ज़ुलहाल अक्सर क्या होगा? मारिफा होगा। और यहाँ पर क्या है? तो हमने अभी क्या कायदा बयान किया कि जब ज़ुलहाल नकिरा हो तो हम इस तरह पढ़ेंगे रअयतु राकिबन रजुलन। ये क्यों तकदीम क्यों? इसलिए कि हमने अब ये पढ़ा कि हाल और ज़ुलहाल जो है, ज़ुलहाल और हाल जो है ये मुब्तदा खबर की तरह होते हैं। ये किसकी तरह होता है? और आपने भी पढ़ा है कि जब मुब्तदा नकिरा हो तो खबर का मुक़द्दम करना वाजिब है। फिर दार ज़ाइदुन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, बहुत सी मिसालें हैं। इस वजह से हम हाल को मुक़द्दम करेंगे किस चीज़ पर? ज़ुलहाल पर। वला यतक़द्दमु अला आमिल अल मानविय्य, वला यतक़द्दमु अला आमिल अल मानविय्य, कहते हैं कि लेकिन अगर ज़ुलहाल आमिल मानवी हो तो हाल को उस आमिल मानवी पर मुक़द्दम नहीं करेंगे, आमिल मानवी पर मुक़द्दम नहीं करेंगे। जैसे कि हमने आमिल मानवी की मिसाल, ये तीसरी नंबर मिसाल किस तरह बयान की थी? हाज़ा ज़ैदुन काइमन, हाज़ा ज़ैदुन काइमन। तो हम अब इस तरह नहीं पढ़ सकते कि काइमन जो है वो यहाँ लगा है, काइमन हाज़ा ज़ैदुन। क्यों? इसलिए कि आमिल मानवी ये एक ज़ईफ़ कमज़ोर आमिल है। ये तरतीब के साथ अमल तो कर सकता है, लेकिन अगर तरतीब को बरअक्स किया जाए, तरतीब के साथ अमल बगैर तरतीब का अमल नहीं कर सकता। इसी वजह से आमिल मानवी बिखिलाफ़ ज़र्फ़ है, बिखिलाफ़ ज़र्फ़ है कि ज़र्फ़ में अमल करेगा, ज़र्फ़ में अमल करेगा। जैसे कि ज़ैदुन काइमन फ़िद्दार है, ज़ैदुन काइमन फ़िद्दार है। यहाँ इख्तिलाफ़ है कि हाल जो है वो जर मजरूर पर मुक़द्दम हो सकता है, ज़र्फ़ पर मुक़द्दम हो सकता है कि नहीं। तो इमाम सिबवी कह रहे हैं कि तक़दीम जायज़ नहीं है, इसलिए कि ज़र्फ़ जो है वो एक कमज़ोर आमिल है। और इमाम अख़फ़श कहते हैं कि मुक़द्दम हो सकते हैं अगर जार मजरूर को का एतमाद मुब्तदा पर किया जाए। जार मजरूर अगर जार मजरूर मुब्तदा पर एतमाद किया जाए, ये मुब्तदा के साथ उसको तकिया दिया जाए, तो फिर क्या होगा? इसलिए कि फिर उसमें एक किस्म की क्या पैदा होगी? तक़वियत पैदा होगी। लेकिन अगर मुब्तदा के साथ उसको टेक ना दिया जाए तो फिर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है। जैसा कि आप ये कहे काइमन ज़ैदुन फ़िद्दार, काइमन, यहाँ पर फ़िद्दार जार मजरूर है। फ़िद्दार जार मजरूर जो है ज़र्फ़ इसने एतमाद किया किस चीज़ पर? ज़ाइद पर। इस वजह से हमने काइमन को क्या किया है? इसलिए कि इस फिर जार मजरूर में एक किस्म का क्या हो गया? एक किस्म की तक़वियत पैदा हो गई। वला अलल मजरूर है, वला अलल मजरूर है। इसी तरह हाल जो होता है अगर ज़ुलहाल मजरूर हो और मजरूर ब हर्फ़ जार हो या मजरूर ब इज़ाफ़त हो, मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है। मररतु बिरजुलिन राकिबन, जैसे कि
मररतु बिरजुलिन राकिबन। ये राकिबन हाल वाक़या हुआ है। ये क्या वाक़या हुआ है? ये हाल वाक़या हुआ है रजुलिन से, किससे? और ये ज़ुलहाल है, और ज़ुलहाल क्या है? ये मजरूर है, मजरूर है। और अभी हमने कहा कि ज़ुलहाल जो है वो उस ज़ुलहाल पर मजरूर नहीं, वो उस ज़ुलहाल पर मुक़द्दम नहीं होगा जो मजरूर हो, जो क्या हो? और मजरूर हर्फ़ जार हो या? अच्छा, तक़दीम जायज़ क्यों नहीं? तक़दीम की 2 सूरतें हैं। या तो हम इस तरह करें कि ये जो राकिबान है, ये हाल जो है, ये इस बिरजुलिन या जार मजरूर के मजमूए पर मुक़द्दम करें। किस चीज़ पर मुक़द्दम करें? यानी हम इस तरह पढ़ें, राकिबान बिरजुलिन, राकिबान बिरजुलिन पढ़ें। इस तरह भी नहीं पढ़ सकते। इस तरह क्यों नहीं पढ़ सकते? वजह ये है कि जिस तरह मजरूर ये रजुलैन मजरूर जो है, ये अपने हर्फ जार जो है इस पर मुकद्दम नहीं हो सकता। आप इस तरह नहीं पढ़ सकते हैं रजुलैन बे। तो जब मजरूर अपने आमिल हर्फ जार पर मुकद्दम नहीं हो सकता, तो इसकी जो ताबे है वो भी उस पर मुकद्दम नहीं हो सकते। और आपने कहा कि राकिबान ये हाल है, और हाल ताबे होता है अपने ज़ुल हाल के। समझ आ गई? तो आप इस मजमूए पर भी मुकद्दम नहीं कर सकते। दूसरी सूरत ये है तकदीम की, आप इस तरह करें कि सिर्फ ये जो मजरूर ज़ुल हाल है इस पर मुकद्दम करे, हर्फ जार पर मुकद्दम ना करे। इस तरह पढ़े बेराकिबन राजुलिन, इस तरह पढ़े। ये भी जायज़ नहीं है। ये क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए कि ये बा जो है ये आमिल अमल करता है रजुलैन में, किसमें? और रजुलैन जो है ये मजरूर है। ये क्या है? बा हर्फ जार की वजह से। और हमने कहा था कि मजरूर हमेशा मुत्तसिल होता है, मुनफसिल इस सूरत में क्या लाज़िम आता है? इन्फिसाल फासला लाज़िम आता है। इस वजह से वला अलल मजरूर अलल असा, वला अलल मजरूर है। एक कौल ये भी है कि मुकद्दम हो सकता है, लेकिन असह कौल ये है कि मुकद्दम नहीं हो सकता। इसी तरह मजरूर बाइज़ाफ़त कि ज़ुलहाल जो है वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैहि है। इसकी भी इसी तरह सूरतें बनती है कि या तो इस तरह कहेंगे कि राकिबान जो है वो उस मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैहि के मजमूए पर मुकद्दम करेंगे। मजमूए पर मुकद्दम नहीं कर सकते इसलिए कि यही जवाब है जो हमने यहाँ पर मजमूए में सुनाया आप लोगों को। और इस तरह भी नहीं कर सकते कि आप उस हाल को मुज़ाफ़ुन इलैहि से बनाएँ। किससे बनाएँ? तो जब मुज़ाफ़ुन इलैहि से बनाया तो फिर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ के दरमियान फ़ासला आ गया, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैहि के दरमियान फ़ासला जायज़ नहीं है। तो यही मतलब है वला अलल मजरूर है। ला अलल मजरूर बा हर्फ़ जार, वला मजरूर बा इज़ाफ़त, दोनों पर जायज़ नहीं है।